let me start the recording. And as usual, we are starting with this a very quick review. Just you need to go to um, uh, this link, poll everywhere, and there's a question waiting for you there, and you need to answer that question. I think there might be some issues with the screen, might be the camera which is blocking the whole answer, but I think that should be fine because the question is there on the poll. Oh, sorry. Somehow message was not sent. Um, so we are doing this activity for 1 minute, and we'll see what is the outcome. The question is simple. You need to write 2 steps and then combine them into a overall reaction. And this reaction is how ClO, which is chlorine monoxide, this catalytically destroys ozone according to mechanism 1. Okay, mechanism 1. So I hope you can write all these equations without any concern about the superscripts or the subscripts. Let's see how is it going. Great. I think yeah. So making an arrow is not difficult. Okay, you can use just the minus sign near the backspace, and then the greater than sign, and yeah. That's great. So far, so good. Great. Okay. So this was the very first activity, and we can basically conclude it here by saying, okay, this is a reaction we talked about in the last class. See, question is how ClO reacts with ozone and destroys it. Okay, and we know that this thing is O3 for the sake of the chemical reaction. हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख रहे हैं, and then basically it will be the ClO2, right, plus O2. And in the second step, we know this ClO2 must react with an atomic oxygen, because that is the condition for mechanism 1, that regeneration of the catalyst, which is in our case is ClO, should lead to the regeneration of the catalyst, right? So then we can simply say that if it is ClO2, we need to take ClO out of it, right?
And then we are left with 2 oxygens. So maybe that will be the O2, right? And if we combine them together, I think let's write it Cl2 here and plus O2 here, just to see that this is 1 step, this is 2 steps. Let's combine them. ClO2 is here, ClO2 is basically here. So ClO is here, ClO is here. And net reaction in mechanism 1 is always O3 combines with O and gives us 2O2. So we are here to go. Remember that the central reaction here is just to show you that how you can predict the products of a reaction. ठीक है? इसलिए उसको हमने यूं करके लिखा था. Right? Okay, so what we are going to do today, we will try to answer some questions. For example, how chlorine compounds are naturally formed and accumulated in the stratosphere. It might be a new thing for you because we do know that many chlorine compounds and many chlorine and fluorine containing compounds are man-made. And because of these anthropogenic activities, they are basically released into the atmosphere and they get accumulated in the stratosphere. But there are some natural resources as well. So we are going to talk about them. And then our question will be how these inactive chlorine compounds get activated. And then they start destroying the ozone layer. We now are quite familiar with this question, how chlorine compounds are going to destroy ozone layer, because either it could be by mechanism 1 or by mechanism 2. Okay, so we'll briefly talk about this question. And then we are going to define this Dobson unit, which is a unit used to, present the concentration of ozone in the atmosphere, or we call it the overhead ozone. Okay, the all ozone which is present in the atmosphere, it is present in Dobson unit. What is Dobson unit? And lastly, we are going to move into the air pollution, which is the chapter 3. थोड़े से हम slow हैं वैसे भी. So we are starting chapter 3, and in chapter 3, we are going to talk about how different units are interconverted. I'm not actually going to talk about it. It will be a part of your assignment, first assignment, जिसमें कुछ problem sets, कुछ problems हैं, set of problem है, और साथ इस तरह से कुछ questions हैं, जो कि जिसमें कुछ काम करना है आपने. वो आज शाम तक अपलोड हो जाएगा. डिटेल सारी की सारी असाइनमेंट सेक्शन में ऑन दी एलएमएस आपको मिल जाएंगी. एक क्वेश्चन में स्लाइड्स में भी मैंने रखा हुआ है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल. ठीक है, सो ये उसके लिए मैं आपको डेडलाइन भी सारी चीजें जो है ना वो बता देता हूँ. तो हमने आज ये देखना है कि हाउ सम गैसेस लाइक CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, are destroyed in the atmosphere, why they do not get accumulating. So these are some of the questions we are going to answer today. The very first thing which is still remaining from the chapter 2 is how atomic chlorine and bromine act as the X catalyst. You remember that we didn't specify what are the X species. बहुत सारे आप में से लोगों का क्वेश्चन भी था कि व्हाट आर एक्स थिंग्स. ठीक है, तो ये हम डिफाइन कर रहे हैं कि दे आर क्लोरीन और ब्रोमीन. ओके, समटाइम्स बोथ, एटलीस्ट एक इनमें से क्लोरीन लाजमी होता है. ठीक है, अच्छा, पहली बात तो ये है कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट देम. इट इज बिकॉज दैट देयर आर मेनी क्लोरीन कंटेनिंग गैसेस जो कि रेफ्रिजरेंट के तौर पे, प्रोपेलेंट के तौर पे वी आर यूजिंग देम. And their use greatly increased in 20th century, and because of that they are released into the atmosphere. They go to the upper atmosphere, which is the stratosphere, and they start killing the ozone. Why? Because they decompose there into atomic chlorine, and atomic chlorine is very, very active thing. Since because of the pandemic, you might have known that there are many
surface cleaners and क्या कहते हैं हम उनको, disinfectants basically make use of this chlorine in them. आपने देखा होगा बहुत सारे जो ब्लीच है, ब्लीच के अंदर आपने देखा दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइड, इट्स ए क्लोरीन कंपाउंड. और आप ने देखा होगा कि इन द स्विमिंग पूल्स वी डू द क्लोरीनेशन. इवन जो म्यूनिसिपल पानी आता है आपके पास, उसमें भी क्लोरीनेशन की जाती है. वी यूज द एक्टिव एटॉमिक क्लोरीन टू किल द जर्म्स, राइट. और डिसइंफेक्शन के लिए भी इसको हॉस्पिटल्स के अंदर यूज किया जा रहा है. बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वायरसेस बैक्टीरिया वगैरह को किल कर लेता है. तो ये एटॉमिक क्लोरीन ओजोन को भी किल करता है फिर अपर स्ट्रेटोस्फीयर में, एंड दैट इज causes the UV radiations from sunlight to reach the surface of the earth. और ऑफ कोर्स कि क्लोरीन ओजोन को डिस्ट्रॉय करती है. ज्यादा जो क्लियर है वो हमारे पास जो साउथ पोल है अर्थ का, देयर इज अ मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन देयर. ठीक है, आज हम देखेंगे भी विजुअली. लेकिन लेट मी टेल यू दैट क्लोरीन इज somehow naturally present in the stratosphere, luckily in the inactive form. तो वो कैसे है, कैसे बनती है? The very first thing is कि we have decaying vegetation in sea. sea में बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि plants होते हैं, and it is also rich in chloride ions. उसमें सारे के सारे fluorides भी हैं, chlorides भी हैं, bromides भी हैं, iodides भी हैं. salts में rich होता है sea. So this decaying vegetation, which are simply the plants, dead plants, when they react with chloride ions, they create a compound which is called methyl chloride. Okay, this decaying vegetation is basically this is rich in carbon, or we can call it the carbon rich. So carbon source is coming from here, and you might remember that these animals and plants, they are mostly made up of the organic compounds, right? Like carbohydrates and proteins, and they are hydrocarbons are their derivatives. So hydrogen and carbon are coming from the decaying vegetation, and chloride ion is coming from the sea salts, and net is this formation of methyl chloride. Okay, अगर आप देखें तो it is just a derivative of this natural gas methane. ठीक है, इसमें एक सब्स्टिट्यूशन हो गई है हाइड्रोजन की विद क्लोरीन. ठीक है, तो इसके मैथेन का एक डेरिवेटिव है. सिंपल. Okay, this methyl chloride basically rises up into the atmosphere, and then what happens that it is capable of absorbing UV light. So what happens? This CH3Cl takes UVC. अच्छा, लाइट का अभी तक हमने ये देखा कि इट causes photolysis, यानी it splits up things into free radicals. So one of the most important जो सोर्स है फ्री रेडिकल का, वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं. लाइट के जरिए जो रिएक्शन इनिशिएट होते हैं. तो यहाँ पे भी सिंपली मैं अगर इसको थोड़ी सी अगर ज्यादा डिटेल में इसकी स्ट्रक्चर बताऊं तो बेसिकली कार्बन इज बॉन्डेड विद 3 हाइड्रोजन्स हियर, and then fourth one is chloride. ठीक है, मैं इसको ऐसे शो कर रहा हूँ. तो होता ये है कि इसके ये जो bonds हैं, which are the covalent bonds, और bonds are formed by the sharing of the electrons. I think कोई unknown चीजें नहीं है फ्रेशमैन केमिस्ट्री में ये सारी चीजें. अच्छा, ये होमोलिटिकली जो है ना वो डिकम्पोज करता है, यानी जब इनका आपस में एक शेयरिंग थी, नाराजगियां हुई, फिर उसके बाद कहा कि भाई ये लो पकड़ो तुम अपना इलेक्ट्रॉन, मेरा इलेक्ट्रॉन वापस करो, and we are not living together anymore. So that leads to the formation of this thing, जिसे मैं CH3 थोड़ा सा डिफरेंट करके लिख रहा हूँ. इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन रह गया, क्लोराइड के पास अपना इलेक्ट्रॉन रह गया. So हम इस बुक के अंदर कन्वेंशन ये है कि फ्री रेडिकल्स के ऊपर ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम शो नहीं कर रहे. ठीक है, that's not a plus, that is splitting. Okay, so this is by the absorption of light, जिसे हम H nu से represent करते हैं, they are splitting into the methyl. तो हमने देख लिया कि भाई the product of this reaction is a methyl radical, जिसे हम simple methyl ही लिख रहे हैं इस बुक के अंदर. लिहाजा मैं भी इसको वही कन्वेंशन फॉलो करता हूँ. आइडियली इनके ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन भी शो होना चाहिए. ठीक है, so this is what happens.
व्हाट इज नेक्स्ट? ये तो हमें पता चल गया कि मेथल क्लोराइड सी में बनता है, इट राइजेस अप इनटू द एटमॉस्फेयर एंड इट क्रिएट्स एटॉमिक क्लोरीन। ओके, अब एटॉमिक क्लोरीन जब आपके पास आती है तो देयर इज अ सेकंड रिएक्शन बाय विच यू नो this is just the first reaction. There is also a second reaction in which methyl chloride can also react with another free radical जिसे हम OH कहते हैं, यानी hydroxy. OH is hydroxy. Last lecture में we talked about how it is generated in the atmosphere. Okay, so what will happen? Yeah, this is a complex reaction. So what we are doing to do, we will just say that it is atomic chlorine plus others. ठीक है, no need to worry about कि भाई इसमें बाकी चीजें क्या है, just remember कि that generates the atomic chlorine. ठीक है, complete reaction नहीं है. So this is how methyl chloride is going to create atomic chlorine into the atmosphere, right? Then next thing is very clear. I think I shouldn't write the mechanism कि what chlorine is going to do, right? It will do if we just follow the mechanism one, it's going to react with ozone and ClO बन जाएगा. ClO वापस atomic oxygen के साथ मिलके chlorine और you know second step is just the ozone destruction, जिसे repeat करने की जरूरत नहीं है because we are very familiar with this mechanism one. ठीक है, so let's move on. Okay, so हमने ये देखा कि this is how it is going to, but luckily ये जो methyl chloride है, क्लोरीन जो है, स्पेशली क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता ज्यादातर. लकीली ये होता है कि द मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक क्लोरीन एग्जिस्ट ईदर एज HCl or ClONO2. ठीक है, I think we know their names. This is not a very strange thing. This is Cl is the chlorine and this ONO2 is basically just NO3. थोड़ा सा हम इसको लिख रहे हैं this is strangely, but this is NO3 और NO3 किसे कहते हैं? नाइट्रेट. तो इसका नाम क्या हुआ? Chlorine nitrate. So this is chlorine nitrate, and they are luckily catalytically inactive molecules. They do not destroy ozone. They cannot react with ozone molecule basically. तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि ज्यादातर जो नेचुरली ऑकरिंग क्लोरीन है वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. कैसे होती है ये हम जरा इसमें देखते हैं. बेसिकली होता ये है हमारे पास कि जो ClO बनता है बहुत सारा, दिस इज अगेन दिस इज ए रेडिकल स्पीशी. ठीक है, इट्स अ फ्री रेडिकल. हमको पता है कि क्लोरीन जब ओजोन के साथ रिएक्ट करती है तो दैट मेक्स दिस फ्री रेडिकल. सो दिस कैन रिएक्ट विद द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में होती है. पिछले लेक्चर में हमने कहा था बाय रिवर्सिबल रिएक्शन दैट क्रिएट्स Cl और NO2 को हम लिख रहे हैं बेसिकली ClO और NO2. वी आर जस्ट कंबाइनिंग देम. ठीक है, कंबाइन कर लिया है तो ये क्लोरीन नाइट्रेट बन गया. इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी क्या है, सनलाइट में ये रिएक्शन होता है इन बोथ डायरेक्शंस. क्लोरीन नाइट्रेट इज फॉर्म्ड, इट डिकम्पोजेस बैक टू क्लोरीन. लेकिन जो हमारी इक्विलिब्रियम की पोजीशन है ना, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द राइट. सो हमने देखा कि अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशंस हमें जो ज्यादा कंसंट्रेशन हमेशा होगी वो इस कंपाउंड की होगी. ठीक है, so that is the dominant form of the chlorine monoxide. So active, this is active, that can react. हमने बिल्कुल review question में देखा कि that can destroy ozone, I mean chlorine monoxide, but chlorine nitrate cannot do that. ठीक है, so ये inactive है, catalytically inactive है, which is a great thing to know. अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि what happens to HCl, how HCl is formed. ठीक है, ये कैसे बनता है?
इसकी अगर हम बात करें कि ये इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, तो बेसिकली एटॉमिक क्लोरीन जो है दैट रिएक्ट्स विद द मीथेन गैस, क्योंकि हमने कहा था कि मीथेन गैस भी एयर के अंदर मौजूद होती है। एंड व्हाट इट डज, ये एक हाइड्रोजन इसमें से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और जब एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू HCl, और साइड में CH3 बनेगा, राइट? I think it's not very difficult to. So now again, this is the inactive form of क्लोरीन। इसके बारे में हम जानते हैं HCl इज एन एसिड, बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इसे कहते हैं, लेबोरेटरीज के अंदर आम यूज होता है, और जो कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर भी आपको ये एसिड्स मिलेंगे, जैसा कि ब्लीच के अंदर, टॉयलेट क्लीनर वगैरह के अंदर, नॉट ब्लीच, टॉयलेट क्लीनर के अंदर। सो ये हमने देखा कि this is how it is formed. Okay, so how it gets converted back to the activation gas. This is inactive again. How it gets activated? It gets activated when it reacts with the OH radicals. आप देखेंगे frequently कि जो OH radicals है ना एयर के अंदर, ये बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस करते हैं, ठीक है? Remember कि atmosphere, because of the high concentration of air, of oxygen, is oxidizing in nature, ठीक है? यानी it combines oxygen with various other elements, और oxides बनाती है, ठीक है? Oxides are just the compounds of the oxygen with other elements, ठीक है? So oxides बनाती है, लेकिन O2 is very stable thing, तो वो O2 फॉर्म में रिएक्टिंग करता, तो हम देखेंगे कि वो ज्यादातर जो रिएक्शंस होते हैं उसमें OH इज टेकिंग द पार्ट, और ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ रिएक्शंस जो है ना इस OH की वजह से होते हैं। सो व्हेन OH रिएक्ट्स with HCl, इट्स ए वेरी सिंपल रिएक्शन। आप देखेंगे कि इसने इसमें से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू H2O एंड एटॉमिक क्लोरीन, सो रीजनरेटेड। सो ये अब इसकी एक्टिव फॉर्म हो गई, कैटालिटिकली एक्टिव फॉर्म है। दूसरी जो थी दैट वाज नॉट एक्टिव। अभी तक समरी हमने ये देखा कि नेचुरली अकरिंग क्लोरीन इज accumulated in stratosphere, but as the inactive forms, chloronitrate, which is here, and HCl, which is here. But there are mechanisms by which both compounds can get converted into the catalytically active forms, like ClO के अंदर बन सकता है ये, और वापस एटॉमिक क्लोरीन में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे ये देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ, देयर इज अ क्वेश्चन आई थिंक कि हाउ डज क्लोरीन ट्रैवल टू द स्ट्रेटोस्फीयर। अच्छा देखें, हमारे पास ये होता है कि क्लोरीन ज्यादातर, अगर हम ये कह रहे हैं ना कि इफ इट इज प्रोड्यूस्ड इन सी इन द फॉर्म ऑफ मेथिल क्लोराइड, और जो रेफ्रिजरेंट के अंदर गैसेस यूज हो रही हैं, इफ दे आर रिलीज्ड इनटू द एयर, तो एयर के अंदर यू नो विद द करंट्स ऑफ द एयर टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। हॉट एयर जो है वो ऊपर को उठती है, कोल्ड नीचे की तरफ आती है, तो यू नो इन दिस वे देयर इज अ मैस ट्रांसपोर्ट, और जिसकी वजह से जो गैसेस हैं वो ट्रोपोस्फियर से इवन दे कैन रीच स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है? तो इट्स बिकॉज कि भाई टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, एयर है, और एयर के अंदर फिर हॉट एयर का ऊपर उठना, दिस आर सम प्रोसेसेस बाय व्हिच गैसेस ट्रैवल टू द स्ट्रेटोस्फियर, इस तरह से जाती है, ठीक है? अच्छा, अब हमने देखना ये है कि हाउ एक समरी सी अगर देखना चाहें आप यहाँ पे, तो हमने ये कहा कि atomic chlorine is very active, it is a catalyst, it kills ozone and forms ClO। अब ClO itself is a free radical, ये भी किल कर सकता है ओजोन को, जैसा कि आज हमने पहली स्लाइड पे देखा था। अच्छा, दिस क्लोरीन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद एटॉमिक ऑक्सीजन टू रीजनरेट एटॉमिक क्लोरीन, ठीक है?
अच्छा, एक मैकेनिज्म हमने ये देखा कि क्लोरीन मोनोऑक्साइड व्हिच इज इन एक्टिव फॉर्म इट रिएक्ट्स विद द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड प्रोड्यूसेस द इनएक्टिव क्लोरीन नाइट्रेट। क्लोरीन क्लोरोनाइट्रेट जो है ये विजिबल लाइट लेके वापस एक्टिव फॉर्म में जनरेट हो सकता है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शंस। क्लोरीन इनएक्टिव होता है बाय इट्स रिएक्शन विद मैथेन, और इसकी जो एक्टिवेशन होती है वो OH रेडिकल के साथ होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मैकेनिज्म्स हैं, दिस इज हाउ एटॉमिक क्लोरीन इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है और एक्टिव फॉर्म में वापस आ जाती है। अच्छा, ये जब बहुत ज्यादा क्लोरीन एयर में रिलीज होती है ना, तो ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं दे गेट डिस्टर्ब्ड, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। और बिकॉज जब हम कह रहे हैं कि वी आर यूजिंग मेनी सिंथेटिक क्लोरीन कंटेनिंग गैसेस, तो वी आर रिलीजिंग देम इन एटमॉस्फेयर। जब वो जाते हैं स्ट्रेटोस्फियर के अंदर, तो दे डिस्टर्ब दीज मेनी इक्विलिब्रिया, जिसकी वजह से there is a shift of the equilibrium towards the atomic chlorine, and atomic chlorine immediately starts killing ozone. तो ये सब्सटेंसेस जो ज्यादातर हम यूज कर रहे हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। अच्छा, पिछले दिनों मैंने अपने जो मेरी गाड़ी है उसमें गर्मियां जब आई थी तो मैंने उसमें गैस भरवाई थी। तो आप में से अक्सर लोगों का अगर वास्ता पड़ा हो, तो जो कार का एसी है, इवन घर के जो एसी हैं, कुछ अरसे के बाद उनमें गैस डलवानी पड़ती है, राइट, विच इज बेसिकली द रेफ्रिजरेंट जो कि कूलिंग करता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके घर में अगर एसी है या कार में आप एसी यूज कर रहे हैं तो उसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं आप? आज आपने ये करना है कि यू विल ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है। अगर आपके पास जो भी कार एसी है, घर का एसी है, उसके अंदर कौन सी गैस पड़ती है, ठीक है, उस गैस का नाम, ठीक है, केमिकल कंपाउंड उसके अंदर जो है वो हमें चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि क्या वी आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द एटमॉस्फेयर, और ओजोन की डिस्ट्रक्शन में क्या हमारी कार का भी कुछ रोल है या नहीं है। Varisha says R4410A. Okay, So so हमें, hydrofluorocarbon. सॉरी क्या नाम है उसका? So शायद hydrofluorocarbons. I'm not sure. सो आप इसकी जरा इसको तलाश करें, इसकी फाइंड इट, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इज इट ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नॉट, और अगर है तो क्या इज इट कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग ओजोन और नॉट। सो ये सारी की सारी बातें जो हमारी रहती थी पिछले लेक्चर से वो हो गई हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक which is from chapter 2, and we are only discussing selected topics from chapter 2, चूंकि ज्यादातर बातें ओजोन की हम कर चुके हैं, मोस्टली इट विल बी द रिपीटेशन, या instead of just saying X or not defining any particular catalyst, we will define कि कौन सा catalyst कैसे act कर रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि look at this picture, what do you see and what do you think कि कहाँ से क्या है ये? इतना तो पता चल रहा है कि it's a picture of what and from where? Any ideas? Chat box is open for sharing your thoughts. One is ISS, International Space Station, above stratosphere. Satellite view of Earth. Exactly, ये आपके सामने एक व्यू है अर्थ का, और उसकी एटमॉस्फेयर आपको नजर आ रही है इन वेरियस कलर्स। एक हेज सी आपको नजर आ रही होगी जस्ट एट दी होराइजन्स, या जो बिल्कुल आपको एज नजर आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली हम ये करते हैं कि we have defined a unit by which basically we present the concentration of ozone, and we are just paying a tribute to Dobson, who was a scientist at the Oxford University, and he was the first one who basically devised a instrument or procedure to measure ozone in air, ठीक है। तो उसको क्रेडिट देने के लिए या उसको एक ऑनर देने के लिए हमने उसके नाम पे एक यूनिट रखी है।
Basically what we do nowadays, we are using several aircrafts, ठीक है, ओजोन को मेजर करने के लिए. देन वी आल्सो नो कि नासा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. नासा के बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं. आपको पता है किसी सैटेलाइट का नाम? नासा के जो सैटेलाइट्स हैं, एक्वा है, टेरा है, हबल इज बेसिकली ए टेलीस्कोप, ठीक है, जो कि जमीन पे है और उससे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं. सो इसके जो ज्यादा फेमस है ना, वो टेरा और एक्वा सैटेलाइट्स हैं. एंड बोथ आर इक्विप्ड विद, दे बोथ आर इक्विप्ड विद साइंटिफिक यू नो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ओवर देम, सेंसर्स, जैसा कि दोनों के ऊपर मोडिस लगा हुआ है, ठीक है. मोडिस, मोडिस एक जो है ना वो स्पेक्ट्रोमीटर है इसके ऊपर, जो कि मेजर करता है बहुत सारी चीजें. सो बेसिकली दे ऑल मेजर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो कि सूरज से जाती हैं. मतलब यहाँ पे सन है इधर, ठीक है, यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन लेट्स से कि इफ इट इज सन, इससे रेडिएशंस जाती हैं, ठीक है. और उसके बाद the things which are present in the atmosphere, they either absorb them, they either scatter them, and NASA satellites are standing up here and they are measuring all these phenomena. ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इनके स्पेक्ट्रोमीटर्स लगे होते हैं और ये देख रहे हैं कि सूरज से जो रोशनी है वो जब जमीन की सरफेस पे जाके टच हो रही है, तो उसकी इंटेंसिटी में क्या चेंजेस आ रही हैं, कौन सी अब्जॉर्प्शंस हो रही हैं, कौन सी स्कैटरिंग हो रही है, और उसकी मदद से दे आर मेजरिंग मैनी थिंग्स. मसलन दे आर मेजरिंग कि हाउ मच एयर पार्टिकल्स और एरोसोल्स आर देयर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितनी है, ओजोन भी मेजर करते हैं. इनका जो ओजोन मेजर करने का है ना इंस्ट्रूमेंट, उसे कहते हैं ओमी, ठीक है, ओजोन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ओजोन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. मॉडिस जो है, दिस इज ए स्पेक्ट्रोमीटर, और मैंने कहा था कि ये इसके ऊपर भी लगा हुआ है, टेरा के ऊपर भी लगा हुआ है, और स्पेक्ट्रोमीटर है तो इसका मतलब है ये बहुत सारी जबरदस्त किस्म की चीजें करता है. मैंने रिसेंटली नासा के साथ एक कोर्स किया था लॉकडाउन के दिनों में. इट वाज वेरी 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 इंफॉर्मेटिव. इसे हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं. देखा, ये जो मैंने चीजें यहाँ पे आपको बताई, इट इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग. और इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आप यहाँ पे बैठे हुए आई कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम द नासा सैटेलाइट्स, और आपको मैं अभी बता सकता हूँ कि एयर के अंदर पोल्यूशन कितनी है, नॉक्सेस के लेवल्स क्या हैं. और मैं अभी भी आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो क्लेम करती है बिलियन ट्री सुनामी, वो ठीक है या नहीं. by using the satellites you can see the vegetation, आप पानी के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, आपकी अर्बन डेवलपमेंट किस तरह की है, आपकी डिफॉरेस्टेशन हो रही है या एफॉरेस्टेशन हो रही है. इस तरह की बहुत सारी चीजें आप रिमोट सेंसिंग यानी नासा के सैटेलाइट्स यूज करके कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू टेल यू ब्रीफली अबाउट कि उनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद एयर के अंदर, वेजिटेशन के अंदर, अर्बन प्लानिंग के अंदर फायर्स कहाँ कहाँ पे हैं, मतलब अक्टूबर के अंदर कहाँ कहाँ पे आग लगी हुई थी वो हमने सैटेलाइट से देखा था. सो इट्स ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एरिया इन एनवायरमेंटल साइंसेज व्हिच इज द रिमोट सेंसिंग. हम एयर के अंदर, वाटर के अंदर, जगह जगह इसकी बात करते रहेंगे. सो मैंने बताया कि ओजोन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट जो नासा सैटेलाइट्स का है, इट आल्सो मेजर. वो कैसे मेजर करता है, वो बेसिकली ये देखता है कि यूवी लाइट एक गिवन एरिया के अंदर कितनी स्कैटर हो रही है. और लेट्स से कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, एक कॉलम के अंदर, एक लेट्स से कि ऑफ सर्टेन एरिया, इस कॉलम के अंदर वो देखता है कि हाउ मच इज द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, ठीक है. और वो कैसे देखता है, बाय द स्कैटरिंग ऑफ और बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द यूवी लाइट. उसके अंदर कितनी चेंजेस आ रही हैं, जितनी चेंजेस आ रही है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन. अच्छा, अब यूनिट उन्होंने कैसे बनाया, अगर फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी से दैट देयर इज अ होल लेयर ऑफ ओजोन, राइट, एंड इट्स अ गैस, सो बहुत ज्यादा एक्सपेंड, जितना उसको वॉल्यूम मिलेगा वो एक्सपेंड करेगी. व्हाट इफ कि हम उसको क्या करना शुरू कर दें, कंप्रेस करें. कितना कंप्रेस करें, टू 1 एटमॉस्फेयर, यानी जो सी लेवल पे प्रेशर होता है इस पे कंप्रेस करके उस तक ले आए.
and we simultaneously cool it down to 0 degree C. तो ऐसा करने से एक गिवन एरिया के ऊपर जितनी थिकनेस बनती है ना आपके पास ओजोन की, हम उसे डॉप्सन यूनिट में बता देते हैं। मसलन एक डॉप्सन यूनिट क्या है? दैट विल बी इक्वल टू 0.01 mm ऑफ ओजोन थिकनेस। ठीक है, ओजोन थिकनेस इक्वल्स 1 डॉप्सन यूनिट। ठीक है, और ये हमने क्या किया कर दिया कि हम इसे अगर कंप्रेस कर दें ओजोन को एट ए सर्टेन एरिया और 0 डिग्री सीपी करें, तो वो जो एक पतली सी उसकी लेयर बनेगी ना, उसकी विड्थ, उसकी थिकनेस आपको बताएगी कि डॉप्सन यूनिट के अंदर ओजोन की कंसंट्रेशन क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक डॉप्सन यूनिट 0.01 mm ऑफ दिस थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 0 डिग्री सी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसको अगर मैं एक और तरह से आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने इसको लिखा भी हुआ है, जस्ट पार्डन मी कि इफ इट इज नॉट सो, हम इसको मॉलिक्यूल्स की टर्म में अगर बता दें तो 1 डॉप्सन यूनिट इज बेसिकली दैट ozone concentration that contains 2.69 into 10 raised power 16 ozone molecules for every square centimeter of the area। ठीक है, यानी एक पूरा कॉलम है अगर इस तरह का, तो बेस ऑफ द कॉलम में हर स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर इतने ओजोन के एटम्स होंगे। तो देयर आर मेनी वेज ऑफ टेलिंग दिस थिंग। तो बेसिकली व्हाट इज इट टेलिंग यू? जस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द ओजोन इन एटमॉस्फेयर। इसकी एक और बड़ी अच्छी एनालॉजी है, वो ये है कि ज्यादातर जगहों पे एवरेज जो ओजोन है वो 300 डॉप्सन यूनिट है। ठीक है, तो 300 डॉप्सन यूनिट का मतलब ये हुआ कि 3 mm, अगर हम ओजोन की 3 mm थिक लेयर की बात कर रहे हैं, एट 1 डिग्री सी है पे है वो, और सॉरी एट 1 एटमॉस्फेयर और 0 डिग्री सी पे है। लेकिन जहां पे ओजोन होल है वहां पे हम देखते हैं कि ये थिकनेस कम होके 1 mm रह गई है। 300 DU या 3 mm क्या चीज होता है? आप देख सकते हैं 2 पेनीज के बराबर। ठीक है, दो, हमारे यहाँ पेनी को 5 का सिक्का समझ लें। ठीक है, 5 के 2 सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखें, जितनी थिकनेस बनेगी दैट इज इतनी थिक होगी डॉप्सन यूनिट के अंदर ओजोन, अगर हम उसे कंप्रेस कर दें। और अगर जहां पे ओजोन है तो इट मस्ट बी 10 का सिक्का समझ लें। ठीक है, कि इस जितना जो थिक है वो इतनी थिकनेस की ओजोन होगी, इन which will be basically 100 Dobson unit, or it equals 1 mm thick ozone layer। अच्छा, जब हमने इसको देख लिया तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक राइट नाउ। यू नो, दिस इज द ग्लोब, और ग्लोब के अंदर आप देखेंगे कि टोटल ओजोन का जो स्केल है दैट इज गिवन एट द बेस, और हम देख रहे हैं कि इट इज फ्रॉम ब्लू टू रेड शिफ्ट, और ब्लू एंड पे हमारे पास लोएस्ट ओजोन है, रेड एंड पे हमारे पास हाईएस्ट है, और दिस इज बेसिकली साउथ पोल। और साउथ पोल को देख के मुझे अपना सर याद आ जाता है, क्योंकि मेरा सर भी जो है ना आजकल लगता है कि जैसे साउथ पोल पे ओजोन का होल नहीं है, एग्जैक्टली वैसा ही होता जा रहा है। इट एग्जैक्टली मैचेस विद द एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो कि क्राउन से आपके जब बाल गिरना शुरू हो जाते हैं ना, तो एग्जैक्टली ऐसे ही पैचेस बनते हैं जैसे कि ओजोन होल से बने हुए। तो दिस साउथ पोल के ऊपर आप देख सकते हैं कि बाकी जगहों पे तो ठीक है, ग्रीन का मतलब ये है कि वी आर हियर इन दिस एरिया 300 से 440 430 के बीच में है कंसंट्रेशन समहाउ। लेकिन साउथ पोल के ऊपर दिस एरिया इज ब्लू। ठीक है, यानी बड़ी जो है ना आपकी ओजोन कम हो गई है, और इवन यहाँ पे आपके पास पर्पल में है, तो पर्पल तो बिल्कुल ही ये एंड है 100 डॉप्सन यूनिट के आसपास। तो इस एरिया के अंदर हमने देखा है कि एवरेज जो ओजोन है दैट इज 220 डॉप्सन यूनिट, व्हिच इज क्वाइट लो। लेट्स सी कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। पहली बात तो जो आपको बतानी है कि दैट इज ओजोन होल, एक टर्म चल गई है, बट इट इज नॉट जस्ट ए टिपिकल होल। ozone is still there, but its concentration is very low. Some ozone is missing. हमने ये देखा है कि ये जो ओजोन का होल है, ये एंटार्क्टिक रीजन जो है
उसके ऊपर बनता है, साउथ पोल के ऊपर। और तीसरी बात तो ये है कि ये होल कहाँ पे सारे साल नहीं रहता ये, आजकल तो तकरीबन कंप्लीटली फिल नहीं होता, लेकिन ज्यादातर ये जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, इसकी जो स्प्रिंग होती है, जो कि अगस्त से अक्टूबर के बीच में है, उसमें ये अपीयर होता है, यानी फॉर कपल ऑफ मंथ्स या 3 मंथ्स के लिए। और जब वहां पे विंटर शुरू होता है साउथ पोल के ऊपर, तो इट क्लोजेस बैक। ठीक है, यानी सिर्फ स्प्रिंग सीजन के, और हमारी वाली स्प्रिंग नहीं, साउथ पोल की जो स्प्रिंग है, जो कि अगस्त से अक्टूबर का पीरियड है, उसमें ये हमारे पास जो है ना वो शुरू होता है। अच्छा, अब हमने ये देखा है कि हमने ये 2014 की पिक्चर आपके सामने है, और आप देख सकते हैं कि वेरी लो वैल्यूज हैं इस साउथ साउथ पोल के ऊपर या साउथर्न हेमिस्फीयर के ऊपर। सेंटर इसका एंटार्क्टिका के ऊपर है, और इट इज ए रीजन विद वेरी लो ओजोन। अच्छा, और हम इसमें देखा है कि हमने इसमें ओजोन की जो एवरेज है ना, वो 220 डॉप्सन यूनिट हमने कहा, that was never observed, such a low value was never observed before 1979। तो ये 1979 के बाद हम we are observing them, or we are studying atmosphere since 1957 से लेके लगातार। तो 1979 में पहली दफा हमने देखा कि इतनी ड्रॉप हो गई है ओजोन की कंसंट्रेशन। that has never been the case। अच्छा, अब इसके बाद जो दूसरी चीज है ना, वो हम देखने चाह रहे हैं कि what happens during the winter at the South Pole, और spring में वहां पे क्या चीजें होती हैं। Yes, Hafi wants to ask any reason for the depletion in spring. Yes, there is a very strong reason behind that, और उसी की हम बात करने जा रहे हैं कि भाई स्प्रिंग में ही ऐसा क्यों होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर की जो स्प्रिंग है उसमें ऐसी क्या हो रही है। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने यू आर ऑब्जर्विंग, यू सी अर्थ, और अर्थ के ऊपर दिस गिफ इमेज, और आप देख सकते हैं कि डेट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। दिस वाज रिकॉर्डेड फ्रॉम द नासा's another instrument, जिसे हम एयर्स कहते हैं। एयर्स इज द एटमॉस्फेरिक इंफ्रारेड साउंडर, ठीक है, और उसकी मदद से इंफ्रारेड साउंडर है, तो इसका मतलब है इट इज कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर्स। बेसिकली दिस इज द टेम्परेचर स्केल। ब्लू एंड पे माइनस में यानी बहुत लो टेम्परेचर है, रेड एंड पे आपके पास हाई टेम्परेचर्स हैं। अगेन दिस इज साउथ पोल, और साउथ पोल में आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर्स बड़े लो हैं, और देयर इज ए वर्ल्ड, आपको वर्ल्ड नजर आ रहा है पूरे का पूरा। ये वर्ल्ड ऑब्जर्व हुआ था 25 से लेके 29 जनवरी में 2019, और आप देख सकते हैं कि एयर जो है ना, दिस लुक्स लाइक इन ए करंट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द एयर। और उसकी हम बात क्यों करने जा रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। बेसिकली ये होता है कि जो स्ट्रेटोस्फियर है, इट इज मोस्टली क्लाउडलेस, ठीक है, कोई क्लाउड्स नहीं बनते उसके, वो ट्रोपोस्फियर में बनते। वजह क्या है? वजह ये है कि वी डू नॉट हैव एनी वाटर वेपर्स देयर जो कि कंडेंस होकर क्लाउड के अंदर बन जाए। बहुत लिमिटेड, ना होने के बराबर पानी है वहां पे। लेकिन कुछ होता यह है कि साउथ पोल के ऊपर जब विंटर शुरू होता है, तो विंटर में वहां पे खास बात यह है साउथ पोल की कि आप सूरज नहीं देखते, टोटल डार्कनेस है वहां की, ठीक है, ड्यूरिंग द विंटर्स। अब जब टोटल डार्कनेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, ड्रॉप होके एटलीस्ट -80 डिग्री C तक ये टच करना शुरू कर देता है विंटर्स के दौरान। इसकी बहुत सारी रीजंस हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। पहली बात तो ये है, एक बड़ी ऑब्वियस सी रीजन है कि हम देखेंगे कि जब तक रिमेंबर, जब तक आपके पास लाइट नहीं है, ओजोन नहीं बनती, राइट? ओजोन की फॉर्मेशन नहीं होगी, और ओजोन की फॉर्मेशन होती है तो उससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हमने देखा था स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। तो जब वो नहीं हो रही तो टेम्परेचर तो ड्रॉप होगा। अच्छा, जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है इतना, तो स्ट्रेटोस्फीयर में वाटर वेपर्स आर नॉट देयर, बट देयर आर सम अदर गैसेस प्रेजेंट। सो होता क्या है कि उन गैसेस की कंडेंसेशन से पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो उन पार्टिकल्स में ज्यादातर हमने देखा है कि क्या क्या चीजें हैं। एयर प्रेशर भी बहुत ड्रॉप हो गया, चूंकि टेम्परेचर कम हुआ, तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ आपका एयर प्रेशर भी कम हो जाएगा। व्हेन दैट हैपेंस, प्रेशर भी डाउन है, और फिर उसके बाद
अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, तो दैट प्रोड्यूसेस व्हाट वी कॉल द वर्टेक्स। और ये आप वर्टेक्स देख रहे हैं इस वक्त। तो वर्टेक्स बेसिकली इज ए व्हर्लिंग, और व्हर्लिंग किसकी हो रही है? ऑफ द एयर, मास ऑफ एयर, और उसमें विंड स्पीड्स होती हैं तकरीबन 300 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस वर्टेक्स के अंदर जो कि एक व्हर्लिंग एयर मास है हैविंग ए वेरी लो टेम्परेचर, इसके अंदर जो एयर है दैट इज आइसोलेटेड and that remains very cold for months, and it condenses। और कंडेंस होके मेरे उसमें जो भी चीजें, मसलन सल्फ्यूरिक एसिड अगर है, जो कि सल्फेट से आता है, सल्फेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में होती है। सो ये एसिड्स कंडेंस करते हैं। थोड़ा बहुत जो भी वाटर है ट्रेसेस में, वो भी कंडेंस कर जाता है और वी गेट सम आइस टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ये वो आपको नजर आ रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, ये चीजें अगेन सैटेलाइट से हमने इनको कैप्चर किया है। दीज आर द क्लाउड्स इन द स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, और इन क्लाउड्स को हम कहते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, PSCs, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। और ये कैसे बने? दीज ये जो हमने कहा था ना कि बिकॉज ऑफ द वर्टेक्स साउथ पोल के ऊपर, जहां पे एयर है बहुत कूल हो गई है, कूल होने के बाद उसके अंदर जो गैसेस हैं वो कंडेंस हो गई हैं, और कंडेंस होने के बाद उन्होंने क्लाउड्स बनाए हैं। ये क्लाउड्स हैं पोलर स्ट्रेटोस्फियरिक क्लाउड्स। ठीक है, और आप सैटेलाइट से इनको देख रहे हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि जो क्रिस्टल्स बनते हैं ना इसके अंदर, उसमें वाटर के हो सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है, बेसिकली ये तीन। अच्छा, अब इन पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स एक्ट एज कि दे प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर मेनी केमिकल रिएक्शंस टू टेक प्लेस। अगर ये पार्टिकल्स ना होते तो शायद ये रिएक्शन, शायद क्या यकीनन ये रिएक्शंस नहीं होने थे जो हम अभी बात करने जा रहे हैं। लेकिन सिंस देयर आर पार्टिकल्स, आइस बनी हुई है, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ रिएक्शंस होते हैं, और वो रिएक्शंस हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। पहली बात ये है कि वी सेड कि देयर आर इनएक्टिव फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन, जैसा कि क्लोरीन नाइट्रेट है। मेरा ख्याल है कि मुझे इसको यहाँ पे लिखना चाहिए ताकि अम, अम, हम इसे देख सकें कि व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग। सो दिस रिएक्ट्स विद वाटर। वाटर कहाँ से आया है? ये वाटर वही है, हमने कहा कि अम, जो कुछ आइस क्रिस्टल्स हैं, बेसिकली दैट इज वाटर। सो इट रिएक्ट्स विद वाटर। यहाँ पे हम आप देख रहे हैं कि इन दिस इक्वेशन वी आर शोइंग द स्टेट्स ऑफ द थिंग्स। G मींस गैसेस, और AQ का मतलब है कि एक्वस, यानी वाटर प्रेजेंट है उसके अंदर। सो बेसिकली क्लोरोनाइट्रेट रिएक्ट्स विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस दिस थिंग, जो कि आपके ब्लीच का हिस्सा भी होता है। इसे हम कहते हैं हाइपोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और साथ दिस इज नाइट्रिक एसिड। अच्छा, हाइपोक्लोरिक एसिड बड़ी सिंपल सी बात है। आपने देखा ना, स्विमिंग पूल में हम क्लोरीन यूज करते हैं, तो जब क्लोरीन आपके पास होती है, आप उसे वाटर में ऐड करते हैं, तो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद इट ऑलवेज मेक्स टू थिंग्स, HOCl एंड HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। अब ये जो HOCl है, दैट डिसोसिएट्स, और डिसोसिएट होने के बाद ये हाइड्रोजन आयन बनाता है और OCl बनाता है विद ए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हाइपोक्लोराइड कहते हैं हम इसको। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि पीएच क्या है। अगर आप पीएच बेसिक रखेंगे तो 11-12 पीएच पे ये सोडियम साल्ट बना लेता अपना अपना जिसे हम सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। घर के अंदर जो ब्लीच है उसमें सोडियम फॉर्म होती है अमूमन, क्योंकि इसका HOCl फॉर्म जो है दैट इज वेरी लेस स्टेबल, लेस स्टेबिलिटी इश्यूज हैं, लिहाजा हम इसको सोडियम साल्ट की फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो हमें ना पता हो। अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच 7 पे HOCl भी एग्जिस्ट करता है और OCl भी एग्जिस्ट करता है। दोनों तकरीबन 50-50 होते हैं। 50% ये फॉर्म होगी और 50% ये फॉर्म होगी।
पीएच चेंज करते जाएं, बेसिक करते जाएं, तो ये चीज फॉर्म। तो ये मैंने कहा कि ऐसी चीज है कि ये ऐसा केमिकल है जो हम घर में आए डेली बेसिस पे इसका यूज है, और कोरोना के दिनों में तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो दिस इज हाइपोक्लोरिक एसिड। हॉस्पिटल्स के अंदर डिसइंफेक्शन के दौरान इवन जो वुंड्स होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी हाइपोक्लोरिक एसिड यूज होते हैं, ठीक है। और दीज आर वेरी रिएक्टिव टाइप ऑफ थिंग्स। तो हमने ये देखा कि इनएक्टिव फॉर्म वर्टेक्स के अंदर क्लाउड्स के ऊपर रिएक्ट करती है और हाइपोक्लोरिक एसिड बनता है। अच्छा, व्हाट सेकंड क्या चीज होती है? अच्छा, जो हमारे पास सेकंड फॉर्म थी क्लोरीन की, हम उसे कहते हैं HCl, राइट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या होता है भाई, आइस क्रिस्टल के अंदर इट आल्सो रिएक्ट्स विद वाटर, और बेसिकली इट डिसॉल्व्स इन दैट वाटर। और डिसॉल्व होने का मतलब यह है कि इट सिंपली डिसोसिएट्स इनटू व्हाट वी कॉल द हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। प्लस और माइनस चार्जेस जब आ जाते हैं तो हम इनको आयंस कहते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें आपके सामने आ गई हैं कि इनएक्टिव फॉर्म्स थी, HCl थी और क्लोरोनाइट्रेट था। They both react with water in these clouds of the crystals of the clouds and make chloride ions और hypochlorous acid बन जाता है। अब होता क्या है कि ये both things react with each other, ठीक है। यानी let's write it here कि chloride ions combine with HOCl, यानी hypochlorous acid के साथ, and what happens? Basically, they combine together to make chlorine. और ये क्लोरीन गैस है, यानी मॉलिक्यूलर गैस, Cl2 हम इसे लिखते हैं। एंड व्हाट एल्स? हमारे पास OH आयंस, ये रेडिकल नहीं है, ये आयन फॉर्म है इसकी, ये बन जाती है। तो अब क्लोरीन जब आपके पास बनती रहती है तो ये क्लाउड्स में ये गैस एक्यूमुलेट होती रहती है ड्यूरिंग द विंटर्स, अनलेस कि अर्ली स्प्रिंग में जो ही थोड़ी थोड़ी धूप निकलना शुरू होती है, ये क्लोरीन बड़ी सेंसिटिव है टुवर्ड्स द सनलाइट। इट टेक्स अप द सनलाइट और सनलाइट इसको स्प्लिट करके एटॉमिक क्लोरीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। HNu इज वी ऑलवेज यूज फॉर द सनलाइट। और जब ये बन गया तो आपको पता है कि आगे क्या होगा, इसने क्लोरीन तोड़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि स्प्रिंग जो ही, विंटर में तो कोई ओजोन डिप्लीट नहीं हो रही थी और ना ही बन रही थी। जो ही स्प्रिंग शुरू हुई तो, लेकिन विंटर के दौरान क्या हो रहा था, क्लोरीन गैस एक्यूमुलेट होती जा रही थी सारी की सारी। और जो ही थोड़ी बहुत उसके अंदर सनलाइट क्लाउड्स के अंदर पहुंचती है तो इमीडिएटली क्लोरीन को उसने तोड़ के एक्टिव फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देना होता है। अच्छा, मैं इसको समराइज कर देता हूं यहाँ पे एक स्लाइड के ऊपर, ताकि हम देख सकें कि हाउ inactive forms of chlorine basically get accumulated. So हम इसे यूं लिख सकते हैं कि we have the crystals in the clouds, polar stratospheric clouds. इन क्रिस्टल्स के एक एक्वस लेयर सी होती है इनके ऊपर बेसिकली, हम उसे यूं शो कर देते हैं। और अब होता क्या है कि इस एक्वस लेयर के अंदर हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म है क्लोरीन की, HCl. Here comes chlorine nitrate. It reacts with HCl, gets converted to chlorine, which is molecular chlorine or chlorine gas. और ये सनलाइट इसको मिलती है जो ही, तो ये स्प्लिट होके एटॉमिक क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेट जो हमारे पास रिएक्शन है बेसिकली वो ये होता है, ठीक है। जो पिछली स्लाइड में हमने रिएक्शन लिखे थे, हम उनको कंबाइन कर लें अगर, तो ये इस तरह से बन जाता है, या हम यहाँ पे उनको लिख लेते हैं कि हाउ बेसिकली थिंग्स आर हैपनिंग। अच्छा, अब बात दरअसल ये है कि जो हाँ, ये मैं आपको बता चुका हूं कि विंटर मंथ्स में क्या हो रहा है, इसी की बेसिकली डिस्क्रिप्शन है सारी की सारी। हाँ, एक दूसरा तरीका भी है कि जो HOCl है, यानी हाइपोक्लोरिक एसिड, ये सनलाइट सेंसिटिव भी है, सनलाइट अब्सॉर्ब करके की भी एटॉमिक क्लोरीन में कन्वर्ट होता जाता है। अच्छा, अब हम ये बात कर रहे हैं कि वर्टेक्स के दौरान हमारे पास
जो है Cl क्लोरीन नाइट्रेट दोबारा नहीं बनता। उसकी वजह ये है कि कि वी नीड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर इट्स फॉर्मेशन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसमें नहीं होती। इसकी वजह ये है कि टेम्परेचर इतना कम है कि NO2 पानी के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बन जाता है, और नाइट्रिक एसिड चूंकि जमना शुरू हो गया है, आइस बनना शुरू हो गई है, उसकी बढ़ जाती है मास डेंसिटी, जो है उसका मास ज्यादा होना शुरू हो जाता है, उस पर ग्रेविटेशनल पुल भी ज्यादा पड़ता है, तो वो मतलब लोअर जो एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फियर की तरफ वो माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह इसका मतलब है कि दे आर आउट फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फियर। If we do not have NO2, chlorine cannot react with it to make this inactive compound of the chlorine, जिसे हम क्लोरीन नाइट्रेट का नाम देते हैं। तो अब ये सारी की सारी बात इसके अंदर हो रही है। सो अच्छा, अब ये जो हमने इतनी सारी बातें की हैं, इसका हम मैकेनिज्म भी लिख लेते हैं कि जब क्लोरीन बन जाती है आपके पास एटॉमिक, तो ओजोन की डिस्ट्रक्शन क्या होती है। रिमेंबर कि सिर्फ मैकेनिज्म 2 ही है जिससे क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय ओजोन। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास मैकेनिज्म 1 में एटॉमिक ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, जो कि स्ट्रेटोस्फियर के अंदर बहुत उसकी कम मिकदार आपको मिलेगी, स्पेशली लोअर स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। So step 1 में क्लोरीन रिएक्ट्स विद ओजोन मेक्स द क्लोरीन मॉलिक्यूल। बेसिकली हम दो रिएक्शन लिख लेते हैं ऐसे। इसका मतलब है कि दो ओजोन मॉलिक्यूल स्प्लिट होके ये दो क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन रहे हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप में दे कंबाइन विद ईच अदर अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म 2। सो वी आर जस्ट कंबाइनिंग देम टुगेदर, कुछ भी नहीं कर रहे। एंड दिस इज ए वेरी स्लो स्टेप। इसका मतलब है ओवरऑल सारे इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है या रेट है या स्पीड है, वो इस रिएक्शन पे डिपेंड करती है। अच्छा, दिस इज ए रेदर अनस्टेबल मॉलिक्यूल, सो इट टेक्स अप यूवी लाइट, वो स्प्लिट होता है ClO2 के, क्लोरीन डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है, क्लोरीन डाइऑक्साइड के अंदर स्प्लिट हो जाता है। इसी क्लोरीन डाइऑक्साइड का जो फर्दर रिएक्शन है वो है कि इट जस्ट इसमें से क्लोरीन निकल जाती है और बाकी कि दिस इज O2, राइट। अगर हम इन तीनों 2 स्टेप्स को कंबाइन कर दें तो आप देख सकते हैं कि दिस ClOO इज फ्रॉम कैंसल, ये कैंसल हो जाएगा। और क्या कैंसल हो सकता है अगर आपको कुछ चीज नजर आ रही हो? यू सी एनीथिंग एल्स जो कि कैंसल आउट हो रहा हो? हाँ, ये होगा ना, ClOO, so basically we have ClO, 2 ClO, यूवी लाइट है, और फिर उसके बाद हमारे पास एक Cl यहाँ पे बना हुआ है, एक Cl यहाँ पे बना हुआ है, सो 2Cl और साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो दिस इज द नेट रिएक्शन जो कि सेकंड में हो रहा है, और मैकेनिज्म 2 हम देख चुके हैं, लिहाजा कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर। अच्छा, जो अगर हम स्टेप 1 और स्टेप 2 को कंबाइन करें तो वी एंड अप अगेन इन दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म 1 से ये डिफरेंट है, क्योंकि मैकेनिज्म 1 में एटॉमिक ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होती है। ये मैकेनिज्म 2 में है कि नेट ओजोन स्प्लिट होके 2 ओजोन मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेते। ये एक बड़ी जबरदस्त हमारे पास एक एविडेंस है अपने इस मैकेनिज्म की। वो कैसे है कि लुक एट दिस, वी हैव ड्रॉन लैटिट्यूड हियर ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर डबल वाई एक्सिस है, सो दो चीजें हैं। क्लोरीन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन है इन पार्ट्स पर बिलियन, जो कि इस साइड पे आपको नजर आ रही है, और आप इसे ये ग्रीन जो ग्राफ है, कर्व है, उसमें देख सकते हैं। ऑन दिस राइट साइड वी हैव ड्रॉन ओजोन, और ओजोन की जो के लिए कर्व है वो ब्लैक कर्व आप देख सकते हैं। और देखिए दे प्रेटी मच एंटी कोरिलेट विद ईच अदर, ठीक है, कि जो जो हमारे सामने हम देखते हैं कि एज सुन एज द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन मोनोऑक्साइड इंक्रीजेस एट सर्टेन एल्टीट्यूड, एट द सेम टाइम हमारे पास ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो ड्रॉप होती जा रही है। तो दैट सपोर्ट्स की इट इज द क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो कि दैट इज टेकिंग पार्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन। अच्छा, आज बहुत ज्यादा आई थिंक कि आई एम टेलिंग। अच्छा, मैं ब्रीफली इसकी बात करूंगा। एक और प्रूफ जो हमारे पास आता है वो ये है कि लुक एट दिस ग्राफ हियर, दिस इज द ओजोन ऑन द एक्स एक्सिस, और हमने उसका पार्शियल प्रेशर शो किया हुआ है या प्रेशर शुरू किया हुआ है मिलियन नहीं मिली पास्कल के अंदर या मिलियन, इसको आप चेक कीजिएगा कि व्हाट इज द यूनिट।
वाई एक्सिस के ऊपर हमें इसके एल्टीट्यूड शो किया हुआ है। आप ब्लैक लाइन देख सकते हैं कि दिस वाज द सिचुएशन बिफोर 1979। हमारे पास एल्टीट्यूड के साथ दिस इज स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन बेसिकली, जहां पे जबरदस्त रिच ओजोन हमें नजर आ रही है, ठीक है। और ये वही रीजन है, अंटार्कटिका का रीजन है, ठीक है। और स्प्रिंग सीजन की हम बात करें, अक्टूबर की बात हो रही है ये, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मिड स्प्रिंग है। तो मिड स्प्रिंग में ये सिचुएशन थी। 1979 से पहले की बात है, ये तकरीबन 1962 से 1971 में हम ये देख रहे हैं, ब्लैक वन, यानी ओजोन होल जब शुरू नहीं हुआ था। अब आप सेकंड वाला जो डॉटेड देख रहे हैं, ये है 1991 से 2001 तक। आप देख रहे हैं कि ये कितनी ड्रॉप हो गई है, ठीक है, ड्यूरिंग द विंटर सीजन। और इवन जो रिसेंट है 2001 के बाद का, वो आपको ये ग्रीन वाला नजर आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि स्प्रिंग के दौरान बिल्कुल ही ओजोन जो है वो ड्रॉप होती है। समरीज की अगर हम देख लें तो ये बात हुई हमने कि भाई लोअर स्ट्रेटोस्फियर के अंदर वर्टेक्स वेदर कंडीशंस हैं, बड़ी स्पेशल हैं एंटार्क्टिक रीजन के ऊपर। winter causes the denitrification. Denitrification is the removal of NO2 in the form of nitric acid. हमने कहा था कि वो NO2 मिलती है आइस के साथ, वाटर के साथ, HNO3 बना लेता है, यानी नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड जब जमता है वर्टेक्स क्लाउड्स के अंदर, तो डेंसिटी इसकी बढ़ जाती है। और फिर उसके बाद ग्रेविटी की वजह से इट सेटल्स, ट्राइज टू सेटल डाउन, और वो ट्रोपोस्फियर की तरफ शुरू। तो नतीजा इसका ये हुआ कि जो इनएक्टिव फॉर्म्स थी हमारे पास क्लोरीन की, यानी HCl और ClONO2, दे गेट कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन, मॉलिक्यूलर क्लोरीन। और मॉलिक्यूलर क्लोरीन स्प्लिट होकर एटॉमिक क्लोरीन बनती है, जो कि मैकेनिज्म 2 से ओजोन को स्प्लिट करती है। अच्छा, अब ये होता है कि जो ही वर्टेक्स डिसअपीयर होता है लेट स्प्रिंग के दौरान, तो आइस जो कि बनी हुई थी वहां पे, वो भी खत्म होना शुरू हो जाती है। आइस खत्म होती है तो ये जो एक्टिवेशन के स्टेप्स है ना, ClNO2 के, क्लोरीन नाइट्रेट के, और दूसरा क्या था, HCl के, वो भी सीज हो जाते हैं। जब सीज होते हैं तो ओजोन जो है ना दोबारा बनना शुरू हो जाती है, और उसकी डिस्ट्रक्शन बेसिकली बंद हो जाती है, और होल जो है वो वापस हील होना शुरू हो जाता है। तो ये जो हमने कहा था ना कि वाई स्प्रिंग में ऐसा क्यों हो रहा है और विंटर में क्या हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर मेंशन है। ये सारे के सारे जो रिएक्शन हैं, ये इस स्लाइड के ऊपर समराइज किए हुए हैं। आप इनको जरा एक बुक के अंदर दिए हुए हैं, एज ए समरी आप इन्हें देख सकते हैं। एक हम क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि a minor route for ozone destruction in the ozone hole involves mechanism 2 with bromine as X and chlorine as X, right? Or vice versa. यानी या इसको X बार कर लें आप। ClO and BRO free radical molecules produced in these processes then collide with each other and rearrange their atoms to eventually yield oxygen and atomic chlorine and bromine. Write out the mechanism for this process and add up the steps to determine the overall reaction. I think कि ये कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि we know mechanism 2, और mechanism 2 में अभी हमने जो रिएक्शन किया है उसमें we used ClO in both steps. हमने देखा था कि पहला स्टेप में भी यही था, दूसरे में भी हमने ClO यूज किया था, आपने दूसरे में BRO यूज करना है, ठीक है, ठीक है। या हम इसको यूं कर सकते हैं कि you start with chlorine and bromine and you can write mechanisms. यहाँ पे ClO बनेगा प्लस O2, और ये जब रिएक्ट करेगा O3 के साथ तो बजाय BRO बन जाएगा, क्योंकि इसने ऑक्सीजन एब्स्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये आपस में कंबाइन होंगे, और दिस इज इट। आपने कंबाइन करके ना
तीनों रिएक्शंस, तो ओवरऑल रिएक्शन लिखना है, कोई बात नहीं। दूसरा है कि व्हाई इज द मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग डाइक्लोरो पेरोक्साइड। डाइक्लोरो पेरोक्साइड कौन सी चीज थी, मैं उसका नाम शायद आपको नहीं बता सका, मिस हो गया मुझसे। वो ये चीज है, ये वाली, दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरो पेरोक्साइड। जिस चीज में भी ओ होता है ना, वो पेरोक्साइड है, ठीक है, O2 जिसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये डाइक्लोरो पेरोक्साइड, यानी जैसे जब ये दोनों चीजें आपस में कंबाइन होती हैं। सॉरी, ये अनइंटेंशनली हो गया। क्वेश्चन आपका ये है कि व्हाई इज द मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग डाइक्लोरो पेरोक्साइड is of negligible importance in the destruction of ozone compared to the one that proceeds by a ClO in the upper level of the stratosphere। अब ये शायद हमने बात नहीं की, आपके ध्यान में क्या आता है वैसे? यानी मैकेनिज्म 2 जो अभी हम देख के आए हैं, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में तो डोमिनेंट मैकेनिज्म है, अपर एटमॉस्फेयर में ये रिएक्शन नहीं होता। यानी ये जो ClO और ClO आपस में मिलते हैं एंड दे मेक ClOOCl यानी डाइक्लोरोपेरोक्साइड, और ये फिर स्प्लिट होता है इनटू यू नो 2 chlorides plus O2। This doesn't happen in upper stratosphere. Why? अच्छा, जैसे रिलेटिवली शायद हमने इसकी बात नहीं की हुई, लेट मी टेल यू। नो बख्तियार, रिमेंबर जब हम स्ट्रेटोस्फीयर की बात करते हैं ना, अगर टेम्परेचर को प्लॉट करें हम विद द एल्टीट्यूड, तो हमने ये कहा था कि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज होता है, फिर ड्रॉप होता है। तो अगर लो स्ट्रेटोस्फीयर higher concentration of oxygen की टेम्परेचर वजह से। ज्यादा होती है ना, ये मैं चूंकि आपको नहीं बताया इसलिए शायद ये आप नहीं बता सकेंगे। दिस स्पीसीज डाइक्लोरोपेरोक्साइड इज वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, डिकम्पोज हो जाता है ये टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो क्योंकि अपर स्ट्रेटोस्फीयर में लोअर स्ट्रेटोस्फीयर की निस्बत टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वहां पे इसका सर्वाइवल मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए ये वहां पे इस मैकेनिज्म के बजाय जो दूसरा मैकेनिज्म है जिसमें क्लोरीन मोनोऑक्साइड बेसिकली एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। आपकी दूसरी बात भी वैलिड है कि अपर स्ट्रेटोस्फीयर में जो जो हम जाते हैं, आपके पास जो एटॉमिक क्लोरीन है उसकी कंसंट्रेशन रिलेटिवली बेटर हो जाती है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ यूवीसी पेनिट्रेट होता है जिससे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन स्प्लिट होकर एटॉमिक ऑक्सीजन बनता रहता है। लेकिन मेन रीजन यही है कि टेम्परेचर सेंसिटिविटी है। ये ध्यान में रखें कि ये बड़ा एक फ्रेजाइल किस्म का कंपाउंड है, ठीक है, टेम्परेचर में टूट जाएगा। जी एग्जैक्टली, हाई टेम्परेचर पे ये वापस ClO में कन्वर्ट होगा, और ClO फिर बेसिकली आगे फर्दर मैकेनिज्म में वाया द रिएक्शन विद एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोसीड करेगा बनिस्बत किसी और चीज की। अच्छा, आपके लिए एक असाइनमेंट मैंने रखी है, वो इस सारी फिगर के ऊपर बेस करती है। इस फिगर के अंदर आप देखें कि देयर आर मेनी थिंग्स जो कि मुझे आपको बतानी चाहिए। अच्छा, मैंने लिखा हुआ है, आप इस सीट को देखें कि यहाँ पे जो मंथ्स हैं एक ईयर के, उनको प्लॉट किया हुआ है अगेंस्ट दी मिनिमम टेम्परेचर, स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर। ये डॉटेड लाइन शो करती है कि दैट इज द टेम्परेचर जहां पे आपके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। वो नहीं है स्ट्रेटोस्फेरिक, जो क्लाउड्स की हम बात करें उनके अंदर जो क्रिस्टल्स बनते हैं, वो मिनिमम टेम्परेचर ये है। आप देख सकते हैं कि इवन इन जुलाई टेम्परेचर इज फार बिलो दिस मिनिमम। तो इसका मतलब आइस बन सकती है, लेकिन नहीं बन रही। आइस बन सकती है, और आइस बनने का मतलब ये है कि आपके पास वो जो ओजोन डिप्लीशन के मैकेनिज्म्स है ना, वो शुरू होने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि दैट प्रोसेस डजंट स्टार्ट अनलेस तकरीबन अगस्त सितंबर के बीच में यहाँ पे जाके हम देख सकते हैं कि वो प्रोसेस शुरू हो गया है, क्योंकि ओजोन का जो लेवल है वो ड्रॉप होना शुरू हो गया है, और मिनिमम है अक्टूबर 1 के अंदर।
then again it starts increasing और तकरीबन 1 महीने के अंदर जाके ओके देयर इज ए रिक्वेस्ट कि इसके फौरन बाद टाइम होती है लेकिन is it at 9:30 next class? Yes, sir. It's exactly after 15 So minutes. we are tightly packed. Okay, मैं अपने मतलब की तरफ आता हूँ. I think this figure is self-explanatory. आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्लियर होता है कि how much area is covered by the whole. ठीक है? और इसको अगर हम एक्सट्रापोलेट करें तो हमें पता चलता है कि अगस्त में प्रोसेस शुरू हो रहा है. हालांकि कंडीशंस वर आइडियल इन जुलाई. आपकी असाइनमेंट में जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनमें क्वेश्चन ये भी है कि आप ओजोन वॉच नासा की साइट है वहां पे जाएंगे वैसे और बहुत सारे उसके अंदर काम है. बुक के अंदर 2010 तक का डेटा है होल का. ठीक है और फिगर वही जो मैंने आपको बताई है ये वाली फिगर है. इसी को आपने एक्सटेंड करना है टू ईयर 2021 और बताएं कि इन टर्म्स ऑफ ये जो ऑब्जर्वेशंस थी कि अगस्त में ओजोन का होल बनना शुरू होता है और दिसंबर में रिकवर होता है. एरिया कितना कवर किया उसने, ये सारे क्वेश्चंस आपने आंसर करने. दूसरी चीज बुक के अंदर जो बहुत सारे इस तरह के ये मैंने खुद प्लॉट किए हुए हैं डेटा डाउनलोड करके ओजोन वॉच से. आपने ये बेसिकली आपकी असाइनमेंट का हिस्सा है कि इस तरह के मुझे ग्राफ चाहिए क्योंकि आपके पास बुक के अंदर इससे आगे ये डेटा है ही नहीं, ये डेटा भी नहीं है. ये डेटा आपने खुद प्लॉट करना है. ठीक है और आएगा कहाँ से, लिंक मैंने दिए हुए हैं, यहाँ से आपने डेटा और फिर उसके बाद सारे क्वेश्चंस उसमें एक्सप्लेनेटरी हैं. मैंने कुछ यहाँ पे फिगर्स वैसे डाली हुई हैं आपको जो स्लाइड्स दी हुई हैं. ये सारी की सारी ओजोन वॉच का जो है ना नासा का वहां से मैंने इसको शो किया हुआ. तो दिस इज इट फॉर द डे. आज जो हमने प्लान किया था वो नहीं हो सका. अच्छा दूसरी बात यह है कि हमारे पास फिलहाल यही है कि वी आर गोइंग ऑन कैंपस. अगर आप लोगों के मसले हैं कोई तो प्लीज ड्रॉप मी ईमेल ताकि हम इसको फाइनल कर सकें. अभी तक तो यही मैसेज है कि इन एकेडमिक ब्लॉक इट इज दी A13 NIB जो ऑडिटोरियम है 13 उसमें हमारी क्लास होगी. तो डू ड्रॉप मी. ठीक है तो आई सेड मतलब हमसे पूछा था तो मैंने यही कहा था कि आई प्रेफर ऑनलाइन टीचिंग. आपका ओपिनियन भी मैंने लिया हुआ था. कंडीशन तो यही लग रही थी कि शायद नहीं होगा लेकिन आई थिंक वी हैव बीन गिवन ए ग्रीन सिग्नल कि वी कैन स्टार्ट ऑन कैंपस. सो हम अगली जो क्लास है फिर उसको ऑन कैंपस ही शुरू करेंगे. इन केस कि आपके किसी के मसले हैं तो आप शेयर करेंगे मेरे साथ तो आई विल ट्राई टू सॉल्व देम. ठीक है सो आज हम इसको बिकॉज ऑफ द वेरी नेक्स्ट क्लास आई एम एंडिंग अप दिस लेक्चर हियर. मेरा प्लान था कि एक पोल और आपसे करवाऊं लेकिन हम इसको नेक्स्ट क्लास तक लेके जाते. चलें हैव अ गुड डे एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीक. मतलब लिटरली सी यू इन क्लास. ओके अल्लाह हाफिज. Thank you, sir.